ابو پیس جناب فرمانروا آمون ہوتب سوم کے خان سالار کو غداری اور دشمنان مصر کی اعانت اور فرمانروا اور ان کے اہل خانہ کے اقدام قتل کے جرم میں بحکم فرمانروا مصر مسلوب کیا جاتا ہے۔ اس کا جسم تختہ دار پر لٹکا رہے گا تاکہ یہ بتدریج موت کے گھاٹ اترے، اور اس کا جسم چیل کبوں کی خوراک بنے۔ نہ تو اسے حنوط کیا جائے گا اور نہ ہی سرزمین غرب میں دفنایا جائے گا، اور یوں ہمیشہ کے لیے نابود ہو جائے گا۔ ان فرامین میں سے ایک بھی میرے خدا یکتا تک پہنچنے کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔ میں اب آپ کے اس مسخرے آئین پر ایمان نہیں رکھتا۔ میں خدا آمون سے بیزار ہوں۔ بکواس بند کرو بے ایمان کافر، اسے خاموش کراؤ۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اس تدریجی موت کو برداشت کر سکوں۔ مارنے کی کوشش کی ہے۔ مابد پر لعنت ہو آمون ہوتا پوتیفار پر۔ تم حق بجانب ہو، تمہاری جگہ کسی اور کو اس تختہ دار پر لٹکنا چاہیے تھا۔ کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ کاش مجھے اتنی مہلت ملتی کہ میں تمہیں یکتا پرستی سے آشنا کرا جاتا۔ اے کاش ممکن ہوتا کہ میں اپنے بچوں کو یزار سی پیغمبر خدا سے آشنا کروا دیتا۔ میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں کہ تمہیں نجات مل گئی۔ بنا روس اگر تمہارا انجام بھی میری طرح ہوتا تو میں اپنے پروردگار کے سامنے گناہگار اور شرمسار ہو جاتا۔ تمہیں نہیں لگ رہا کہ جیسے وہ مسکرا رہا ہو؟ ہاں واقعی مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ معاملہ کیا ہے، وہ کیوں مسکرا رہا ہے؟ میرا خیال ہے اسے یقین ہے کہ بعد از مرگ وہ بہترین مقام پائے گا۔ میں کچھ سمجھی نہیں، اگر کسی کو نہ حنوط کیا جائے اور نہ ہی دفنایا جائے تو کیا کیسے ممکن ہے کہ اسے مرنے کے بعد بہترین مقام مل سکے؟
एक दिन जरूर असली मुजरिमों को तख्ताए दार पर पहुंचा कर दम लूंगा। हरकत करो। युजारसीफ कहाँ है? आपने जो ताबीर की थी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आपूपीस को मसलूब कर दिया गया। मैं जानता था। सुबह से उसी के हक में दुआगो हूं। खुदा उसकी मगफिरत फरमाए। बीनारूस भी आजाद हो गया है और जनाब फरमा रवा के पास अपने साबका ओहदे पर बहाल हो गया है। इतनी सही और दकीक ताबीर आखिर कैसे मुमकिन है? ताबीर और पेशनगोई खुद से लगाए गए अंदाजों पर मबनी होती है, जबकि मैंने तावील पेश की है। आपूपीस और बीनारूस के ख्वाब की असल हकीकत को इल्म खुदा की रोशनी में उन पर जाहिर किया है। मैंने आज खुद कुछ नहीं बताया। खुदावंद हम सबको और आपूपीस की रूह को बख्शे। तुमने पेशेंगोई कैसे की युजारसीफ? सहर और जादू के जरिए या शयातीन के? वो निशानियां जो दूसरों के लिए बाइस हिदायत हैं, उनसे जालिमों को सिवाय ज़िया और खसारे के कुछ हासिल नहीं होता। जालिम तुम खुद हो, जादूगर, साहिर। मैं इस कदर अहमक भी नहीं हूं कि तुम्हारे दावाए पैगंबरी पर यकीन कर लूं। हाँ, तुम एक पेशिंगोई करने वाले जादूगर से ज्यादा कुछ नहीं। हाँ तो जनाब युजारसीफ, कोई और नहीं ताजा जादूगरी और पेशिंगोई नहीं। तुम्हें कितने सालों के लिए कैद किया गया है? हमेशा के लिए। सावीरा एक फरामोश खाना है, इतनी जल्दी यहाँ से कोई नहीं निकलता। तुम नैनीफर अनकरीब इस जिंदान से रिहाई पाओगे। क्या कहा? उम्मीद करता हूँ कि जिंदान की इस कैद से रिहाई तुम्हें शैतान की कैद से भी रिहाई दे दे। सुना तुम लोगों ने इसने क्या कहा? खुदा करे कि युजारसीफ की ये बात सच साबित ना हो और तुम ताअबद यहीं पड़े सड़ते रहो। अगर ये पेशिंगोई सच साबित हो गई तो मैं तुम पर ईमान ले आऊंगा। मुझे यकीन आ जाएगा कि तुम वाकई मिस्र के सबसे बड़े शायर और जादूगर हो। मुर्दे सुना नहीं करते। पैगाम हक और कलाम सिद्क उनके मुर्दा दिलों में नहीं उतरता, और अगर निदाए हक सुन भी लें तो या तो पुष्ट कर लेते हैं, या झुटला देते हैं, या उसे सहर जादू का नाम देते हैं। आइए रूह आपूपीस के लिए दुआ करें। खुदावंद आपूपीस की रूह को अपने जवार रहमत में जगा दे और उसे बख्श दे और उसकी मगफिरत फरमा।
قسم بالکل ایسا ہی منظر خواب میں دیکھا تھا، اور یوزار شیخ نے اسے بتایا تھا وہ ایسی ہی موت مارا جائے گا۔ آخر میرے شوہر کو کیوں نیچے نہیں اتار دیتے؟ چھوڑ دو اسے، یہاں سے جاؤ، چلو دور ہٹو، جاؤ یہاں سے۔ آخر اسے نیچے کیوں نہیں اتار دیتے؟ اس کی لاش پر دور ہٹ کرو۔ لیکن یہی ہے، دار پر یوں ہی لٹکا رہے۔ جاؤ یہاں سے، دور ہٹ جاؤ، چلو جاؤ، جاؤ یہاں سے۔ لعنت ہو ان پر جنہوں نے میرے شوہر کو مار ڈالا۔ خداؤں کی لعنت ہو آپ ماہوں پر، آمود ہوتا اور بدی پر، اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے مجھ سے میرا شوہر چھین لیا۔ ہو جاؤ، صبر کرو، جو ہونا تھا سب ہو گیا، ہم بے بس ہیں، برداشت کرو، برداشت کرو۔ قیدی نینیفر کی ابتدا آزاد ہے۔ میں آزاد ہوں، میں آزاد ہوں، میں آزاد ہوں، میں آزاد ہوں۔ تم بہت بڑے جادوگر ہو یوزار شیخ، پورے مصر میں تمہارا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تم 12 سال پہلے چوری اور دیگر بہت سی خلاف ورزیوں کے جرم میں قید ہوئے تھے، اور تعدم مرگ تمہیں زندان میں ہی رہنا تھا، لیکن کاہنان معبد آمون کی درخواست پر تمہیں آزاد کیا جا رہا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ تم راہ راست پر آ جاؤ گے اور بجائے شرنگیزیوں کے معبد آمون کی خدمات انجام دو گے۔ امید کرتا ہوں کہ کائنان کی یہ آرزو پایا تکمیل کو پہنچے، سمجھ جاؤ۔ یوزار شیخ کی یہ بات بھی سچ ثابت ہو گئی۔ اس کے لیے میری عقیدت و ایمان میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تمام نشانیاں اس کے پیغمبر خدا ہونے کی واضح دلیل ہیں۔ اے نبی خدا، کیا ہمیں واعظ و نصیحت نہیں فرمائیں گے؟ بسا اوقات انبیاء بعض لوگوں کی ہدایت کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے، مردے کلام حق سنا نہیں کرتے، اگر سن بھی لیں تو یا تو پشت کر لیتے ہیں، یا اس کی تکذیب کرتے ہیں، یا اسے جادو کا نام دیتے ہیں۔ عالی جناب، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں جناب۔ حرکت کرو۔ عالی جناب، نیل کے کنارے کی زرخیز زمین کے کچھ حصے جن پر قبضہ کر لیا گیا تھا
वो उनके मालिकान को वापस लौटा दी गई हैं, लेकिन काहिनान माबद अपनी खुदसरियों और जारहाना कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहे। अगर मेरी जिंदगी के दिन बाकी रह गए तो मैं आमून और काहिनान माबद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप इसके बुनियादी असबाब और अवामिल पर गौर क्यों नहीं करते? मुश्किल इस आइन की असास में है। आमून और मिस्र के दीगर बुतों की परस्तिश ही असल फसाद की जड़ है। वो खुदा जो अपने बंदों के अमाल की निगरानी न कर सके, उसके बंदे इस तरह बेलगाम बेरारबी का शिकार हो जाते हैं। आपको चाहिए कि इस आइन की तब्दीली पर संजीदगी से गौर करें। आमून परस्ती मिस्र का कदीम आइन है, क्या इतनी आसानी से उसे बदला जा सकता है? किसी भी गलत अमल की मुसलसल तकरार इसके दुरुस्त होने की जमानत नहीं। जब तक ये आइन मिस्र में राइज है, शरंगेजियां और लूटमार यूं ही कायम रहेगी। आली जनाब, मैं कैसे ही कैदी को जानता हूँ जो आपके हम अकीदा है। अगर आप इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं आपकी खिदमत में। आली जनाब, क्या हुआ इसे? दरबार के मखसूस तबीब सनुआ को खबर करो, जल्दी करो। जी जनाब। बीनारूस को तो अब तक आपका पैगाम आमून हो तब तक पहुंचा देना चाहिए था, तो फिर क्यों नहीं पहुंचाया? शायद वो भूल गया हो। क्या ये मुमकिन है कि इतनी अहम बात बीनारूस इतनी आसानी से भूल जाए? हम हमेशा अपने अमाल की अंजाम दही पर कादिर नहीं होते। मुमकिन है उसे बताने की इजाजत ही न दी गई हो। मैं समझा नहीं। किसने? उसी ने जो नहीं चाहता कि युजासिफ किसी गैर से मुतवस्सिल हो। वही जो बंदों का गैर खुदा के सामने दस्ते सवाल दराज करने को पसंद नहीं फरमाता, और वही जिसने बीनारूस को फरामोशी में मुब्तला कर दिया होगा। मैं क्या कहना चाह रहा था? इसके बारे में कहना चाह रहा था। ओफो, वली अहद आमून होतब की तबीयत खराबी ने सब कुछ भुला दिया। ये कैसी हालत है इसकी सेनोवा? आप माहिर तबीब और सर और दिमाग के अमराज में तजर्बा और महारत रखते हैं, तो फिर हमारे वली अहद की बीमारी की तशखीस क्यों नहीं कर पा रहे? बसा औकात माहिर और तजर्बाकार मुआलिज भी बाज़ बीमारियों के इलाज से आजिज होते हैं, और ये बीमारी उन्हीं में से एक है। आपके ख्याल में जवान वली अहद की बीमारी मिर्गी है या बेहोशी? कोई भी नहीं। मेरे पास इन दोनों बीमारियों का इलाज मौजूद है, लेकिन इनकी इस बीमारी की तशखीस से मैं आजिज हूँ। तो क्या मतलब, इसकी इस बीमारी से निजात के लिए कोई चारा न किया जाए? कोशिश करें कि जब तक कोई मुनासिब इलाज दरियाफ्त नहीं हो जाता, इन्हें हर किस्म की ज़हनी इज़्तिराब और परेशानी से दूर रखें। मेरा ख्याल है माबद आमून के साहिर इसका इलाज कर सकते हैं। मुझे साहिरान माबद के इलाज की कोई जरूरत नहीं। मैं उन सब पर लानत भेजता हूँ, आमून और उसके तमाम काहिनों और साहिरों पर, जिन्हें सिवाय पेट पूजा और लूटमार के कुछ सुझाई नहीं देता। तुम्हें आमून और खादमीन माबद की इस तरह इहानत नहीं करनी बस कीजिए बानो, मैं किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि वो मेरे ही दरबार में आमून और काहिनान माबद की हिमायत करे। चले जाइए। जब तक माबद आमून के मुखबिर बानूदी की सूरत में हमारे दरमियान दरबार में मौजूद हैं, उन्हें कभी शिकस्त का सामना नहीं हो सकता। ए आमून बुजुर्ग, मेरा तेरे सिवा कोई सहारा नहीं। तू क्यों मेरी मदद नहीं करता? क्या मैंने अब तक तेरी बारगाह में ढेरों नजराने पेश नहीं किए? क्या हजारों तलाई सीखे?
اور دیگر گراں بہا ہدیے تجھ پر نچھاور نہیں کیے؟ کیا میں نے بہترین توام تیری خدمت میں پیش نہیں کیے؟ پھر کیوں تو میری مدد نہیں کرتا؟ اگر ہم بندے اپنی حاجات کو خداؤں کے سامنے نہ لے جائیں تو کہاں لے جائیں؟ کس سے امید رکھیں؟ لیکن مانو حضور، آپ آمون کی ہمسر اور ان کے معبد کی دیوی ہیں، تو پھر کیسے توقع رکھتی ہیں کہ آپ غیر آمون سے دل لگائیں اور آمون آپ کی مدد کرے؟ آخر مجھے غصہ کیوں دلاتی ہوں؟ اگر آمون کے حرم سرا میں ہوتی اور ہر روز کاہنوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنتی تب کوئی عیب نہ تھا، لیکن یوزاسر سے دل لگانا عیب ہے۔ آخر کاہنان تو آمون کے خادمین ہیں۔ بس کرے، میں کچھ سننا نہیں چاہتی۔ جی بہتر مانو حضور، اگر میری اہانت سے آپ کو تسکین ملتی ہے تو ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ قصور آپ کا اپنا ہے، بجائے اس کے کہ طنز کے نشتر میرے دل پر چلائیں تو میٹھے بولوں سے میرے درد کا مداوع کیجیے۔ میں نے تو پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ ہی نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ جناب پوتیفار کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ جس طرح پہلے ان سے یوزارسف کو قید کروانے کا تقاضا کیا تھا، اسی طرح آزاد کروانے کا تقاضا کر لیجیے۔ اور جناب پوتیفار تو بالکل بھی نہیں پوچھیں گے کہ کس وجہ سے قید کروانے کا تقاضا کیا تھا، اور آپ اچانک اسے آزاد کروانا چاہتی ہیں۔ آپ کی تجاویز بھی آپ ہی کی طرح ہوتی ہیں۔ کاری ماما۔ جی بانو حضور۔ میری نظروں کا دھوکہ ہے یا آئینے کا؟ میں پشمردہ دکھائی دے رہی ہوں نا؟ نہیں بانو حضور، ذرا سے بناؤ سنگھار سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مطلب ہو گئی ہوں؟ اگر میری یہ افسردگی یوں ہی برقرار رہی تو جب یوزارسف آزاد ہوگا میں اس کا سامنا کیسے کروں گی؟ رنجیدہ مت ہوئیے، آپ اب بھی مصر کے حسین ترین خاتون ہیں، پہلے کی طرح شاداب، جوان اور حسین۔ میں اس کی اس دوری کی متحمل نہیں ہو سکتی، کچھ کرنا ہوگا۔ یوزارسف نے تمہیں کیسے توڑا؟ لیکن میں نے خود دیکھا کہ اس نے تمہیں چھوا تک لی، تم خود ہی ٹوٹ گئے، بالکل میری طرح۔ یاد ہے یہ پہلے ایک دوسرے کو کتنا چاہتے تھے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اس سے زیادہ رونق تو ابھی بھی شہر خاموشہ میں ہوگی۔ بانو کی ہوس نے اس قصر کو ایک ویرانے میں بدل دیا ہے۔ ہمارے درباری طبیب سنوہا کو خبر کرو۔
गालिबन जनाब पूतीफार की तबीयत नासाज है। मालूम है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? उन्हें तबीब की जरूरत है, मेरी नहीं। क्या मालूम मेरी मौजूदगी से उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। आपकी हरकत क़ल्ब मुनज़्ज़म और मुतवातिर नहीं है। आली जनाब, कोशिश करें शदीद गम और गुस्से से परहेज करें और कुछ अरसा इस्तिराहत फरमाएं। मैं कुछ अद्वियात आपके लिए तैयार किए दे रहा हूं जो हर रोज बाकायदगी से लेनी है और दौरान इलाज मुकम्मल आराम करें। क्या कर रहे हैं आली जनाब? मैंने कहा था कि आपका दिल सही तौर पर काम नहीं कर रहा है। मिस्र के बड़े और माहिर तबीब सनुआ पर मुकम्मल इत्मीनान होने के बावजूद भी मैं उनकी इस तजवीज पर अमल करने से कासिर हूँ। ज्यादा चलना फिरना आपके लिए मुज़िर है। उमूर मिस्र की जिम्मेदारी मेहनत शाका की मतकाजी है। अलबत्ता इसके अलावा आप जो भी तजवीज करेंगे मैं उस पर अमल करूंगा। मैं इस मुआवजे की जिम्मेदारी से बड़ी उत्तमा होता हूँ और आपकी सेहत की मजीद खराबी की सूरत में कम अज कम मैं जिम्मेदार नहीं आली जनाब। देख रही है करी मामा, पत्थर की चक्की जिस तरह गंदुम को पीस डालती है और वक्त की चक्की इंसान को। इन 8-9 सालों में जब से युजार सिर्फ कैद हुआ है, बानो अपनी उम्र से 20 साल बड़ी दिखाई देने लगी हैं। कसूर उनका अपना है। वहां यूजार सीफ को जिंदान में डाला और यहाँ खुद को रंज और मुसीबत में। ये सर दर्द मुझे मार डालेगा। अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। जाओ सेनुआ को बुलाओ। छोड़ो मुझे। आप इफरात से काम ले रहे हैं आली जनाब। आपके सरदर्द और बीमारी की वजह यही शराब है। मेरी तस्कीन की वजह सिर्फ यही है। अगर ये बेखबरी ना हो तो ये सरदर्द तो मेरी जान ही ले ले। आली जनाब, फरमा रवाए मिस्र की उम्र दराज हो। मेहरबानी करके पानी मंगवाइए ताकि आली जनाब अपने अद्वियात ले सके। तुम मेरे दर्द के असली सबब के मुतलाशी हो। यह जानते हो कि मेरा मरज क्या है, लेकिन बता नहीं रहे हो। आप भी जानते हैं कि असल मसला कसरत शराब नोशी है। ये मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ बानो, लेकिन फरमान रवाए मिस्र ने बंदाए नाचीज की बातों पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये शराब ही मेरा वाहिद इलाज है और सिर्फ इसी से मुझे तस्कीन मिल सकती है। लेकिन दर हकीकत जहर कातिल है। क्या बक रहे हो? दर्द की कोई दवा कर सकते हो या नहीं? आली जनाब, अगर आपने शराब नोशी तर्क न की तो मुझे मजबूरन आपके सर की जर्राही करना पड़ेगी और आपके मगज की रगों को नुकसान पहुंचाने वाले छोटे छोटे कीड़ों का खात्मा करना होगा।
मेरे दिमाग को चाटने वाले और नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े तो ये माबद आमून के कान हैं, और जब तक कि इनका कोई सत्याभाव न कर लूं मेरा इलाज मुमकिन नहीं। नहीं नहीं, मैं किसी भी सूरत तुम्हें जर्राही की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें जिंदा बचने का इम्कान बहुत ही कम है। फिर शराब नोशी तर्क कर दीजिए। तर्क तो नहीं, अलबत्ता कम कम पीऊंगा। ये क्या था? बेनरूस से कहो कि थोड़ी सी खालिस और ग्वारा शराब तैयार कर रही। मैं अपने खुदावंदगार को खतरे से आगाह कर रहा हूं। अपना ख्याल रखिएगा। तो गोया अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है आमून होतब। क्या कर रहे हैं जनाब यूजार सीफ? फूलों की निगहदाश्त कर रहा हूँ। वो काम जो तमाम उम्र इन्हें करना है। यूजार सेफ के लिए कोई फर्क नहीं रखता।
वो फूलों की निगहदाश्त हो या फिर वो इंसानों की हो। मुकम्मल तख्लिया। क्या सुना नहीं मैंने क्या कहा? तख्लिया। नहीं तुम रुको, मुझे तुमसे काम है। बहुत गौर से सुनो। तुम्हारी माँ आमून परस्त और बड़ी मुतासिब है। उन्हें हुकूमती मामलात से दूर रखना। मुझे हुनूद करने के बाद उस कब्र में जो मैंने पहले से अपने लिए बनवा रखी है दफन करना। लेकिन आमून का मुजस्मा मेरे हमरा दफन मत करना, क्योंकि मैं आमून पर ईमान नहीं रखता। काहिन बहुत खतरनाक लोग हैं। आईने आमून परस्ती तो मफादात के तहफ्फुज के लिए मुंतखब किया है, और अपने मफादात के तहफ्फुज के लिए वो हर हद से गुजर सकते हैं। इन पर भरोसा मत करना। अपने तमाम राज वो दीवार से कहना। वो हरगिज़ तुमसे गद्दारी नहीं करेगा। अपनी माँ का एहतराम करना, लेकिन उन पर भरोसा मत करना। अपनी अहलिया नफरती से मोहब्बत से पेश आना, और इससे साहिब औलाद होना। मेरी नस्ल को मुनक़ता मत होने देना। याद रखना कि बदमुज़ास की नस्ल खत्म न होने पाए।
सल्तनत और हुक्मरानी की मिसाल सूरज के तुलूब और गुरूब होने की सी है। आज आमून होतब सोम की सल्तनत का सूरज गुरूब हुआ है, कल आमून होतब चहारुम का सूरज तुलू होगा। आज आमून होतब सोम हुनूद किए जाएंगे, जबकि कल आमून होतब चहारुम की रस्म ताजपोशी होगी।